Okay, so he is a practicing consultant neuro and endoscopic spine surgeon, and he's been practicing neurosurgery for more than 8 years now. So Dr. Achal has been associated, like he has done his DNB neurosurgery from STM University of Lidavati Institute in Mumbai. After that, he has done NSSA fellowship, that too specializing in spine endoscopy from All Is Well Hospital. And post that, he has done his fellowship in endoscopic spine surgery to South Korea. So in South Korea, he has learned under Dr. Lim, and Dr. Lim is one of the best, you can say, is the mentor, the faculty, or the neurosurgeon going around in endoscopic spine surgery. And he's specialist in operating brain and spinal tumors. Dr. Achal has done more than 1,000 spine surgeries. He's been doing brain surgeries, and he has completed more than 800 brain surgeries as well. And as I said, that he is a master in endoscopic spine surgery, and he has completed more than 400 cases. Beyond this, I can give a small brief about his curriculum or the academics, that he has been ranked first in Haryana's PMT tests. He is the first, guy to receive the Young Scientific Team Award in the biotechnology. And a fun fact that he has extracted his DNA himself. So he's that well versed, or he's that is well astute in all these things. Beyond all this, surgeries, he has given a lot of best papers, and his papers has been awarded as the best papers throughout the conferences, throughout the multiple events. He has done more than 100 national presentations, while he has also gone abroad and delivered multiple talks and presentations in international symposiums. So he has done around 5 international symposiums where he has been given the opportunity to talk and present the topics of spine endoscopy. And he has published more than 14 chapters in recognized journals. So all these achievements are his, and today he'll be your guide, he'll be your mentor to take you through this journey of spine endoscopy. And last but not the least, he is even the author of a book called as Happy and Healthy Living. So with that, I give the stage to Dr. Achal Gupta, that he can guide you throughout this journey, where he'll, like his book of Happy and Healthy Living, he can give you some tips and tricks regarding how to keep your spine healthy and happy. Over to you, Dr. Achal. Thank you, Savdharma, for the wonderful, wonderful introduction of mine. And definitely this webinar is going to have the eye-opener for many people. And definitely I would like to speak on my favorite topic, that is the spine. So today we are here to speak on essential tips for daily spine health. So आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि हम रोजमर्रा की जीवन में ऐसा क्या करें कि हम अपनी स्पाइन को ठीक रख सके। स्पाइन को ठीक रखेंगे तो क्या होगा, कमर में दर्द नहीं होगा। आमतौर पे जो बोलते हैं कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो सबसे हम छुटकारा पा पाएंगे। So let's start this journey. So am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, you are audible. Oh, okay. Yes, sir. So let's see. For this journey, I'm really very excited कि मैं इस नॉलेज को, स्पाइन नॉलेज को मैं हर एक तक पहुंचाऊं। उसका रीजन ये है कि अगर लोग जानेंगे तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे। और ये एक मेरा मिशन है कि ये सब लोग को हेल्दी रखना है और उनको खुश रहने के लिए एक पूंजी देनी है। तो इसी पर्पस से मैंने एक बुक लिखा था, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, ए प्रैक्टिकल हैंडबुक। एक बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया किताब थी, जिन्होंने बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। और अभी उसका हिंदी वर्जन भी हम निकालने वाले हैं वेरी सून। सो सी but all this motivation, from where it has come, this is really very important. And ये सब मोटिवेशन के पीछे ये गुरु है हमारे प्रोफेसर अमानी। He is the first spine surgeon of the country, पहले स्पाइन सर्जन है, और ये सब के गुरु हैं जो इस भारतवर्ष में स्पाइन सर्जरी को ऑपरेट करते हैं। तो स्पाइन सर्जरी, इनके इवन बर्थडे को हम न्यूरो स्पाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। He is my guru, he is my mentor,
he took me into this journey of spine 8 years back. I was with him for 6 years. So इनसे जो हमने सीखा, पूरा स्पाइन का डायनेमिक सीखा, उनसे हमने सीखा कि लोगों में किस तरह से जागरूकता फैलाना है और उनको अच्छा करना है. दिस शुड बी आवर मिशन. हमारा मिशन सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, हमारा मिशन है लोगों को स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, लोगों को जागरूक किया जाए, उनको एक अच्छी लाइफ दी जाए. और अगर कसरत काम नहीं आ रही है या फिर एक्सरसाइज का सेट काम नहीं आ रहे हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो लास्ट में एक ऑप्शन होता है सर्जरी का. दैट इज द लास्ट ऑप्शन. दिस इज द जेंटलमैन दैट हु टॉट मी एवरीथिंग. सो in this journey, you meet a lot of people. अपनी यात्रा में आप बहुत लोगों से मिलते हो. So he is Professor Lim, Kenton Lim from Korea. He taught me what is the importance of endoscopic spine surgery. And he is the perfect master who can teach you, who even जो आपके हाथ देख के समझ जाते हैं कि ये कहाँ पे ठीक कर रहे हैं, कहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. So because of his blessings, मैं आज 400 spine surgeries पूरी कर पाया हूँ. और very many thanks to him, और ऊपर वाले गॉड को भी जिसने मेरे को ये इतने सब टीचर्स से मिलाया. So let's dive into this concept and understand the common spine issues. So see, our spine is very beautiful. It has beautiful curves. ये cervical spine गर्दन का हिस्सा है, देखो कितना beautiful है. It is having a gentle C curve. Then ये dorsal spine का जो छाती की spine है उसका एक curve है. It's a beautiful curve. जो कमर का हिस्सा है, lumbar spine इसको बोलते हैं, इसका एक beautiful C curve है. And again that is the sacrum, again एक curve है. So with this curve, body maintain करती है अपने पूरे वजन को, और एक चीज पॉसिबल कर पाती है कि वजन इस रीढ़ की हड्डी से पैरों के साथ जमीन पे ट्रांसफर हो पाए और हम खड़े हो पाए और रोजमर्रा का काम कर पाए. हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पहले इवोल्यूशन के टाइम से पहले हम चारों हाथ पैर पे चलते थे, फिर हम धीरे धीरे खड़े होना सीखे. ठीक है. तो धीरे धीरे खड़े होने का मतलब कैसे हो पाए? क्योंकि हमारी स्पाइन ने हमारा साथ दिया. हमारी स्पाइन की जो मसल्स थी हमने उतना मजबूत बनाया कि ये हम खड़े हो सके. सो दिस इज ए ब्यूटीफुल स्पाइन. एंड हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो इसके स्पाइन के कर्व्स हैं, जो स्पाइन का अलाइनमेंट है, उनको हमें रिस्पेक्ट करना है और उसको उसी से हम अच्छे रह सकते हैं. बट क्या लाइफ हर समय एक जैसी होती है? नहीं, एक जैसी नहीं होती. धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, धीरे धीरे पेशेंट आगे की तरफ झुकना चालू करता है और अल्टीमेटली वो व्हील चेयर तक भी आ सकता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लाइफ है कंटिन्यूअस काइफोसिंग इवेंट है. काइफोसिंग मतलब आगे झुकता रहता है. क्यों झुकता रहता है? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, और जो स्पाइन है हमारी स्टिफ हो जाती है, कड़क हो जाती है, वो धीरे धीरे आदमी ऐसा आगे झुकने के लग जाता है. उसमें ताकत, उसकी स्पाइन में इतनी ताकत नहीं रहती. और जब हम एक नॉर्थ अमेरिकन स्पाइन सोसाइटी है, जब उसने स्टडी किया तो मालूम पड़ा 70 साल की उम्र तक 100% 100% मरीज के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस मिलते हैं. बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बहुत जल्दी देखने को मिलती है. कारण क्योंकि हमारी हैबिट है इस तरह के बैठने की, उकड़ू बैठने की, आलती पालती मार के बैठने की, स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठने की, और साथ में बीड़ी, हुक्का, ये सब पीने का. ऐसा करने से स्पाइन के अंदर डीजनरेशन बहुत फास्ट हो जाता है. और जो ये 70 साल की उम्र में जो 100% मरीज मिलते हैं हमारी इंडियन पॉपुलेशन या एशियन पॉपुलेशन में, हमें बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं. सो ये अगर इस तरह से लगातार लोग करते हैं तो उनको अपने जीवन में कभी ना कभी कमर में दर्द का एक्सपीरियंस करना पड़ता है. ठीक है. सो कमर का दर्द एक कंटिन्यूअस एक पैराडिम है जो हम अपने को अपनी मसल्स के साथ प्ले कर रहा है. ठीक है. अगर ये शॉर्ट टाइम में हो रहा है तो हम इसको एक्यूट इवेंट बोलते हैं. अगर थोड़ा समय हो गया तो सब एक्यूट बोलते हैं. और 2 साल 3 साल लंबे समय से चल रहा है तो हम इसको बोलते हैं क्रोनिक बैक पेन, लंबे समय से चल रहा है.
सो अभी हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेटली ये जो लो बैक पेन है ये बहुत ज्यादा है, बहुत हायर पॉपुलेशन। लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से हम बात करें तो 7.5%, 7.5% लोग बैक पेन से सफर कर रहे हैं। ओके, और 85% लोग को कभी ना कभी जीवन के अंदर बैक पेन के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन लेनी पड़ी है। और ये दूसरी ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। पहली तो घुटना होती है, तो दूसरी ऐसी बीमारी है जो स्पाइन के लिए लोग कभी पीठ में दर्द है या गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है, इस चीज के लिए डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। और तीसरी एक ऐसी बीमारी है ये जिसके लिए मरीजों को ऑपरेशन कराने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट इज सो मच कॉमन, सो मच कॉमन। और पांचवी इस तरह की बीमारी है जिसके लिए मरीज को कभी ना कभी हॉस्पिटल में एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो ये एक इतनी आम बीमारी है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना होगा और हमें समझना होगा कि किस तरह से हम अपनी स्पाइन को हेल्दी रखें। अभी बात आती है कि अगर हम मेल्स में और फीमेल्स में, पुरुष में और महिलाओं में अगर कंपेयर करते हैं तो मालूम पड़ता है महिलाओं में कमर में दर्द ज्यादा होता है और क्रोनिक बैक पेन ज्यादा मिलता है। कारण ये कि इंडियन पॉपुलेशन में महिलाएं अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। वो जब बोलती है जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है, बहुत लेट हो जाता है, और अपने सिम्टम्स को, अपनी बीमारी को हमेशा कम करके बोलती है क्योंकि उनको परिवार की चिंता रहती है। तो ये भी चीजें बढ़ जाती हैं तो क्रोनिक बैक पेन में हम बोलते हैं। तो मोस्टली ये जो बैक पेन है 45 से 65 साल की उम्र में बहुत आम हो जाता है, बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं। तो इसके क्या कारण हैं और किस तरह से हमारी रोजमर्रा की जीवन को ये अफेक्ट कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो मुख्य कारण कभी कभी किसी में किडनी स्टोन होना, ठीक है, या फिर हैवी वेट लिफ्ट करना। हैवी वेट लिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत तरीके से करने में, वो हम समझेंगे। दूसरा, कभी गिर जाना, कूल्हे के बल गिर जाना या कमर के बल गिर जाना, उसके कारण दर्द हो सकता है। और पुअर सिटिंग पोस्चर, दिस इज द मोस्ट कॉमन एज ऑफ नाउ, क्योंकि लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम हो गया। पुअर सिटिंग पोस्चर, फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड्स, कि आगे झुक के किसी को लंबे समय तक काम करना। बच्चे हैं तो वो चिल्ड्रन पढ़ाई करते इसमें आगे झुक के काम करते हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं तो मोबाइल के लिए आगे झुक के लगे रहते हैं कंटिन्यूअस एफर्ट्स में। और लास्ट में आता है स्पाइन का डिजेनरेशन। तो स्पाइन की डिजेनरेशन से पहले तो दूसरे कारण बहुत ज्यादा हैं जो कि मरीज हमारे पास आते हैं और बैक पेन के लिए बोलते हैं। सो हमें समझना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये लो बैक पेन या कमर में दर्द हो रहा है। पहला है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आसीन जीवन शैली। मीन्स इस जीवन शैली में आजकल हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं, एक्टिविटी खत्म हो गया है। सो धीरे धीरे मांसपेशी वीक होती हैं और बैक पेन कोज करती हैं। नेक्स्ट इज पुअर पोस्चर। हमारा बैठना उठना वो पूरे दिन 24 घंटे रहने वाला है, तो अगर हम पोस्चर का ध्यान नहीं रखेंगे तो मसल्स में प्रॉब्लम होगा और वो फटीग में चली जाएंगी और वो पेन करेंगी। नेक्स्ट इज मसल इम्बैलेंस। जब हम अपनी मसल्स का ध्यान नहीं रखते और रॉन्ग पोस्चर में कोई चीज सामान उठाते हैं या फिर उसको एक ही पोस्चर में लंबे समय तक हम स्ट्रेस देते हैं, तो दोनों साइड की मसल्स में बैलेंस नहीं रखता, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक साइड आदमी झुक सकता है और उसके अंदर दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है मसल्स के अंदर। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। आज के टाइम पे कितना कॉमन है, आप सब जानते हैं। मोटापा, वजन बढ़ना, पेट का बाहर निकलना, तो अल्टीमेटली वजन ज्यादा होगा, स्पाइन को झेलना होगा और तो फिर वो दर्द पेन करेंगी। नाउ अंडरस्टैंड ऐसे कौन से और फैक्टर्स हैं जिसको हम कमर में दर्द होते हैं। दैट इज वन इज एज रिलेटेड चेंजेस। उम्र के हिसाब से भी धीरे धीरे डिजेनरेशन होगा, ठीक है, स्पाइन में, वो एक आम बात है, ठीक है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, जैसे गांव के अंदर कोई मजदूर है, मिस्त्री है, वो काम करते हैं झुक के, वो आ सकते हैं। या फिर किसी का सामान उठाने का काम है, वो हमारे पास बैक पेन के लिए आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स से काम नहीं, मैकेनिक्स को बिना समझे काम करते हैं और अपनी बैक को स्ट्रेन करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी से बोलते हैं कि आप कसरत कीजिए, तो बोलते हैं कि नहीं सर, हम तो डेली कसरत करते हैं। कैसे? हम तो सब पूरे दिन काम करते हैं। पूरे दिन काम
करना क्या कसरत है? नहीं, कसरत आपको एक्सरसाइज आपको स्फूर्ति बढ़ती है, लेकिन काम आपको थकाता है, ये फर्क है। दूसरा, सामान का सही तरीके से ना उठाना, ना समझना, ठीक है। मैं आई एम श्योर जो अभी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको भी बराबर नहीं समझता है कि किस तरह से बराबर तरीके से सामान उठाया जाए। लास्ट इज साइको सोशल फैक्टर्स। जिस तरह से एक बार मन में किसी के बैठ जाए कि वो दर्द है, तो दर्द के लिए बार बार पेशेंट बोले। और दूसरा, स्ट्रेस। इस भाग दौड़ की जिंदगी में स्ट्रेस जो होता है, इमोशनल जो फैक्टर्स होते हैं, वो भी मसल्स में टेंशन बढ़ते हैं और वो बैक पेन का कारण बनते हैं। अभी हम बात करेंगे लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे। फर्स्ट इज फिजिकल इनएक्टिविटी, जैसे हमने बात किया आसीन जीवन शैली, वो एक बड़ा कारण है। सेकंड इज स्मोकिंग। स्मोकिंग आजकल बहुत कॉमन हो गया है। स्मोकिंग से होता क्या है कि जो ब्लड फ्लो होता है स्पाइन में, वो अवरुद्ध हो जाता है, कम हो जाता है। यही एक कारण, ये एक बहुत बड़ा कारण है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर कि डीजनरेशन हमें जल्दी देखने को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नींद पूरी ना। कभी आदमी 10 बजे सो रहा है, कभी इंजीनियर होते हैं, या फिर बच्चे हैं वो अपना कंप्यूटर पे काम, आज स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सो डेस्क जॉब होने से या पोस्चर खराब होने से ये बैक पेन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। नेक्स्ट इज टेक्स्ट लूज हो गया है। पहनती है, इससे क्या होता है कि पोस्चर, स्पाइन का पूरा बायोमैकेनिक्स खराब हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से खड़ा ना होकर टेढ़ा खड़े होते हैं, तो उससे अगेन पोस्चर खराब हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो आगे से अपनी बैक को आर्क करके खड़े होते हैं, तो सही पोस्चर में ना खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा कारण है स्पाइन में पेन होने का। सो जिस तरह से इसमें आप समझो कि हमारा जो सिर है नॉर्मली 10 to 12 पाउंड्स का होता है 0 डिग्री पे। जब हम नीचे देखते हैं तो सिर का वजन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये जो वजन है, ये अब मैं हिंदी में क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप में बढ़ रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो वेट है स्पाइन का यहाँ पर आना है। वी आर मेजरिंग वेट ओवर हेयर, ओके। तो हम नीचे जब देखते हैं तो ये जो मसल्स है स्पाइन की, इसको ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर हम ज्यादा बेंड कर रहे हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव वजन उसको टॉलरेट करना पड़ता है। और अगर इसी तरीके से लंबे समय तक काम किया जाए तो मसल्स एक करेंगी, वो फटीग में चली जाएंगी, क्योंकि ज्यादा भार उठा रही हैं और रॉन्ग पोस्चर में काम कर रही हैं लंबे समय तक। तो हमें स्पाइन के डायनामिक्स का ध्यान रखना है। तो स्लोली ये हमने बहुत आम देखा हुआ कि लोग इस तरीके से खड़े हैं। सी, दिस इज वेरी पुअर पोस्चर। और इस तरह से बैक में हम्प निकलना लग गया, ठीक है, बैक में हम्प निकलने लग गया। सो दीज आर रियली वेरी बैड पोस्चर। अभी ये बच्ची को देखते हैं तो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलेगा कि वो आराम से कहेंगे हम रिलैक्स होके पढ़ाई कर रहे हैं। रिलैक्स होके नहीं, सी आप ये देखिए, समझिए, ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर के कारण पूरा वजन इसका एग्जैक्टली यहाँ पर आया है, एग्जैक्टली यहाँ पे स्पाइन पे, यहाँ पे कमर में। इसके कारण यहाँ पर इस गुड़िया को पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सही पोस्चर क्या है कि ये वजन सीधा बटक्स पे आए, बटक्स का अच्छा कॉन्टैक्ट रहे सीट के ऊपर और डायरेक्टली वो ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट हो जाए और इक्वल अमाउंट में शिफ्ट हो जाए, तो कमर में दर्द नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इस चीज का ध्यान रखना है। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो उसमें डिस्क डीजनरेशन, हम कहते हैं गादी सड़ गई है, गादी फट गई है, हर्निएटेड डिस्क, रप्चर्ड डिस्क, इसके कारण बैक में पेन हो सकता है। या सciatica वाला दर्द कि एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक बाजू करंट के जैसे दर्द दौड़ रहा है। दूसरा कि स्पाइन में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, स्पाइन आगे पीछे हो गया है,
या फिर स्पाइन के अंदर जबरदस्त स्टीनोसिस, नस दब गई है चारों तरफ से, ये सब कारण हो सकते हैं। इसके अलावा स्पाइन में इंफेक्शन होना, ट्यूमर होना या किडनी स्टोन होना, ये सब भी कोज करते हैं कमर में दर्द के। अभी इस वीडियो के अंदर समझिए, ये पेशेंट को बैक पेन है, इस बैक पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये कारण तो हो सकता है कि कहीं चोट लगी हो या फिर किसी नस के अंदर जबरदस्त उसको पेन हुआ हो। दूसरा, अभी इसके अंदर कंपोनेंट समझिए, फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम, हड्डी, सेकंड इज नर्व्स, जो इस हड्डी के अंदर स्पाइनल नर्व्स जो घूम रही है, एंड थर्ड पार्ट इज मसल। ठीक है, सो अगर पेशेंट को इन तीनों में से कहीं पर भी पेन होगा तो मरीज क्या बोलेगा कि मुझे कमर में दर्द है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास, एक डॉक्टर के पास। वो एग्जामिन करते हैं, उसके बाद मालूम पड़ता है कि एक्चुअल बीमारी कहाँ पे है, मांसपेशी में है, नस में है या हड्डी में है। सो किसी भी बैक पेन के, प्राइमरी बैक पेन के 3 कंपोनेंट होते हैं, इन तीनों को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और वो डॉक्टर एक अच्छे कुशल एग्जामिनेशन से ही पता कर सकता है। अगर रिक्वायरमेंट लगता है तो एक्सरे करवाते हैं, तो रिक्वायरमेंट लगता है तो एमआरआई करवाते हैं, और उससे सही मूलभूत कारण का मालूम पड़ता है, और उसको ट्रीटमेंट करके पेशेंट अच्छे होते हैं। ये सब जरूरी है। सो पेशेंट की रिकवरी के लिए बोलते हैं कि बेड रेस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, या फिर आम धारणा की बेड रेस्ट। क्या बेड रेस्ट आप 2 महीना 3 महीना कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कितना अलाउड है, कितना मेडिकल फ्रेटर्निटी बोलती है बेड रेस्ट के लिए? ओनली 2 days, 48 hours, आफ्टर दैट देयर शुड नॉट बी एनी बेड रेस्ट। लंबा बेड रेस्ट किया तो क्या होगा? मसल्स फर्दर वीक हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? ऐसा कमर में पट्टा लगाओ, लंबर बेल्ट लगाओ, और एक्टिव रहो, काम करते रहो, ट्रीटमेंट लो, जैसे दवाइयाँ, जैसे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। ठीक है, इन सबको करने से धीरे धीरे उसमें आराम मिलता है। और फर्दर इसके अलावा अगर आराम नहीं मिलेगा तो कुछ और चीजें हैं, जिस तरह से इन्वेसिव के अंदर नर्व इंजेक्शन लगाना, या फिर अल्टीमेटली स्पाइन सर्जरी करना, एक लास्ट ऑप्शन होते हैं। सब चीजें, इन सब चीज को समझना जरूरी है, और एक स्पाइन विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है, तभी वो आपको मालूम पड़ पाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे दर्द है, वो हड्डी में, नर्व में या मसल में, किसके कारण आपको कमरे में दर्द होता है। तो अभी समझते हैं बैक पेन साइंस सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कि मसल फोर करेंगी और एकदम जबरदस्त पेन करेंगी। जब आप झुकेंगे तो पेन बढ़ जाएगा, सामान आप उठा नहीं पाएंगे, और आपको लगेगा कि सोने से आराम मिलेगा। थोड़ा भी बैठेंगे या चलेंगे तो लगता है नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये सब आपको लगेगा कि आपकी कमर या फिर पीठ किसने पकड़ लिया, मसल स्टिफनेस लगेगा। तो ये सब कारण है। इन सब के फर्दर अगर हम जांच में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये जो डिस्क है किसी किसी में हर्निएट कर जाती है, और जो नर्व रूट बाहर निकल रही है इसको कंप्रेस करती है। अगर ऐसा है और ये नस के अंदर करंट कम हो रहा है तो बहुत ज्यादा एक ऑप्शन हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि सर्जरी के लिए। क्यों? क्योंकि नर्व के ऊपर ज्यादा लंबा समय प्रेशर टॉलरेट नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा, नस को कमजोर कर सकता है। सो इस तरह से एमआरआई करके आगे से हम समझ सकते हैं कि क्या कारण है, क्या ऐसा क्यों होता है। सो ये 9 साइंस है कि आपको डिस्क हर्निएट की या नहीं की, कि आपको नस दबी या नहीं दबी या नहीं दबी। पहला है बैठे बैठे भी दर्द होना। दूसरा कि करंट जैसा नीचे तक पैर में दर्द दौड़ता है, पैर के पीछे से नीचे तक दर्द आता है। दूसरा झुंझुनी आना, या पैरों में कमजोरी होना, चप्पल पहनने में तकलीफ होना, या फिर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करते समय वो दर्द बढ़ जाना, या फिर बधिरपना, भारीपन हो जाना, नमनेस हो जाना, या फिर एक पैर में या एक हाथ में एक करंट के जैसा दर्द होना। अगर हम कमर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पकड़ ली हो, मसल स्पाज्म होना, और ये दर्द बढ़ जाता है जब रात आप सोते हैं, लेटते हैं। तो इसी दर्द को हम बोलते हैं शैटिका, क्योंकि ये L4, L5, L5, S1 यहाँ पे अगर किसी भी नस में दबाव हुआ
तो ये करंट के जैसा ये स्टैटिक नर्व को यहाँ पर कंप्रेस करेगी, इस तरह से यहाँ पे कंप्रेस करेगी, और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि नीचे तक दर्द हो रहा है। एक्चुअल पैथोलॉजी नीचे नहीं है, एक्चुअल पैथोलॉजी यहाँ पे है, ऊपर कमर में, जहाँ पे स्पाइन के अंदर गादी के फटने से नस दब गई है। तो इन सब चीज का हमें ध्यान रखना है। किन किन चीज में, किन लोगों में एक आम बात है, जो मोटे लोग हैं या लंबे लोग हैं या उम्र ज्यादा है या जो लोग लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, क्योंकि उनमें मांसपेशी कमजोर है। शुगर के मरीजों में ये सब कॉमन है। तो इन सब चीजों में लोगों में कॉमन है। कैसे मालूम करें? एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, और कुछ केसेस में सीटी स्कैन की भी रिक्वायरमेंट कर सकती है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है देखेंगे हमारे। अच्छा, अभी हम पूछते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो बाइक पे जाते हैं और इस तरह से अपना मोबाइल फोन लगा के बात करते हैं। अभी आप देखिए, जो मैंने आपको पहली फोटो दिखाई थी, स्पाइन एक ब्यूटीफुल कर्व है। क्या इसके अंदर ये स्पाइन का ब्यूटीफुल कर्व मेंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसी पोस्चर में ये हैबिट बन गया, लंबे समय तक ऐसे रहा, तो क्या इस मरीज को पीठ में दर्द होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो कैसे बात करना चाहिए? स्पाइन के सटल कर्व को हमें अप्रिशिएट करना है, स्पाइन के सटल कर्व को, हमें ब्यूटीफुल कर्व को रिस्पेक्ट देनी है, और एक प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी बातें, पोस्चर्स का ध्यान रखना है। ये मैम नीचे झुक के लंबे समय तक अपने फोन पे काम करती है, क्या ये ठीक है? क्या नहीं। ये मैंने स्पाइन जानबूझ के लगाया ताकि आप समझ के कि आपकी स्पाइन टेंशन में है, यहाँ की जो नर्व रूट्स जो निकल रही है वो टेंशन में है, और धीरे धीरे ये हम पीठ के पीछे जो ये हम्प है वो बनने लग गया है और मांसपेशी कमजोर होने लग गई है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो सही तरीका क्या है? ये सही तरीका है, आप सीधा बैठिए, छाती सामने हो, और अगर फोन यूज करना है तो ऊपर तक लेके आइए, हाथों को ऊपर तक लेके आइए, तभी आप कीजिए। ये चीजें और चीज समझेंगे। कितने लोग हैं अपने पॉकेट में पीछे पर्स रखते हैं, पर्स में आजकल डेबिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, 500 रुपए के नोट भर के इतना मोटा हो जाता है, 2 से 3 इंच। एंड फाइनली मैंने आपको स्पाइन रख के दिखाई है कि ये स्पाइन किस तरीके से टेढ़ी हो जाती है। सी, दिस इज नॉट द ब्यूटीफुल कर्व ऑफ स्पाइन। ये स्पाइन के कर्व के अंदर प्रॉब्लम करेगा। तो वेट जब आएगा, फॉलो होगा, तो यहाँ पे वो प्रॉपरली फॉल नहीं हो पाएगा। एक जगह ज्यादा होगा, एक जगह कम होगा। इसके कारण ये सैक्रोइलेग जॉइंट, जो हड्डी, स्पाइन की जो हड्डी है और जो एक कूल्हे की हड्डी है, इसके अंदर जब प्रॉपर वेट ट्रांसफर नहीं होगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन करेंगी। सही तरीका क्या है? क्या पर्स को पीछे रखना चाहिए? नहीं, पर्स को बैठते समय अपनी आगे वाली पॉकेट में रखो या फिर किसी अपने बैग में रखो। While carrying, you can carry in your behind pockets, but जब बैठते समय ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ी में बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। अब हटने के बाद see the beautiful curve of the spine। ये कर्व जैसे हमने हटाया ये पर्स, तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से मेंटेन हो गया कर्व। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे कहते हैं सर स्पाइन में, कमर, गर्दन में दर्द हो गया, पिलो हटा दे क्या? तो ये आपका आंसर है। सो सी, मैंने ये पेशेंट ने ये ऊंचा मोटा तकिया लगाया है, तो देखो कि ये स्पाइन का जो कर्व है किस तरह से प्रॉब्लम है, और ये पूरी रात ऐसे ही रहने वाला है। हाँ, पूरी रात ऐसे ही रहने वाला है। तो फिर क्या होगा? इस पेशेंट को मॉर्निंग में उठ के पेन होगा ही होगा, धीरे धीरे मसल्स वीक होंगी ही होंगी। या फिर कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं कि पतला तकिया लगाते हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? सी, देख सकते हैं आप, इसमें भी स्पाइन को स्ट्रेस आता है। राइट? सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है सर्वाइकल पिलो, या फिर उतना मोटाई होनी चाहिए जितने आपके कंधे की ऊंचाई है, ताकि जब पेशेंट लेटे तो उसकी स्पाइन को कोई स्ट्रेस ना हो और नेक को थोड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार एक कॉमन क्वेश्चन होता है, ये आपके सामने, आप समझेंगे तो आप ध्यान रख पाएंगे। दूसरा, फोन को कैसे यूज करें? आई थिंक दिस शुड बी द राइट वे। देखिए, इन्होंने अपनी एल्बो को दूसरे हाथ से सपोर्ट किया और हाथ को ऊपर आई लेवल तक लेके आए तो यूज किया। नेक को बिल्कुल सीधा रखें। अगर ये नेक को नीचे देख के ऐसे लंबे समय तक काम करेंगे तो गर्दन में दर्द होना आम है, नॉर्मल है। ये मैंने फोटो बहुत सोच के समझ के डाले। आप ये देखिए, जब आप गाड़ी में बैठते हो
क्या आपकी स्पाइन कुछ इसी तरह की नहीं हो जाती? अगर इसी तरीके से आप 2-3 घंटा किसी रोड पे जाएंगे तो फिर क्या आपको उठने के बाद कमर में भारीपन नहीं लगता है? लगता है, लगता है, यस लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, एक छोटा पिलो रखना है, हाँ, जिससे वो लो बैक के ऊपर सपोर्ट करे और वो ऑटोमेटिकली पूरा पोस्चर करेक्ट हो जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी बातें ध्यान रखने की समझता है। ये स्केलेटन्स हमने दिखाए हैं, एक पेशेंट है, एक कोई अगर इस तरह से ढीला हो अपनी चेयर में बैठते हैं तो अल्टीमेटली पूरी स्पाइन का वेट उसके यहाँ पर पड़ेगा और उसको बैक में पेन होगा ही होगा। अगर कोई इस तरीके से क्रॉस लेग खड़ा होके और टेढ़ा खड़ा होगा तो अल्टीमेटली स्पाइन के वेट का जो स्पाइन पे वजन पड़ेगा वो प्रॉपरली नहीं पड़ेगा, उसको लंबे समय में पेन होगा, दर्द स्टार्ट होगा। क्या सही तरीका है? सीधा बैठे ताकि पूरा वेट ट्रांसफर हो पेल्विस बोन पे, हिप बोन पे, और हिप बोन से फीमर बोन पे, मतलब लेग्स की बोन में आए और नीचे आराम से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो। इस तरीके से लंबे समय तक बैठने में भी पेन नहीं होता है। और खड़े होने का तरीका क्या है? दोनों पैरों पे बराबर वजन आए, सीधा खड़े हुए, चेस्ट छाती ऊपर रखिए, ठीक है। अब ये स्कूल के बच्चे को देखते हैं, ये अपना नॉर्मली स्कूल का बैग लेके डेली जाते हैं और आगे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि वजन है पीछे, बच्चा है चल जाएगा, क्योंकि एज 15 से कम है, स्पाइन में बहुत मोबिलिटी है, स्पाइन में बहुत फॉरगिविंग है। बट यही अगर चीज कोई 25 साल की उम्र के बाद, 25 ईयर्स की उम्र के बाद करता है, एज के बाद करता है, तो धीरे धीरे उसकी कमर में दर्द आम बात है। ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं, जो डेली पैसेंजर होते हैं ट्रेन में, बस में, जिनको ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर जो बाइक पे अपना बैग लेके जो चलते हैं, ये बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में हमें वेट का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें हाथ में कैरी करना चाहिए, ठीक है, या फिर बार बार हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर हमें कम बैक की मसल्स को मजबूत बनाना चाहिए। यही सब सही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सही तरीका क्या है बैठने का। ये बच्ची ऐसे बैठती है तो क्या होगा, इससे पूरा वेट ऐसे यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, हाँ, कमर में। इस तरह से कमर में ट्रांसफर होने से इसको कमर में दर्द होगा। दिस इज नॉट ए गुड पोस्चर, अगेन दिस इज नॉट ए गुड पोस्चर आगे झुक के बैठने से। क्यों? क्योंकि अगेन पूरा वेट इसका यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर, अगेन इट इज नॉट ट्रांसफरिंग एज पर दिस स्पाइन कर्वेचर। ये स्पाइन एर्गोनॉमिक्स का ध्यान नहीं रखता है। और इसके अंदर ये बैक का सपोर्ट लिए बिना एकदम पन के जैसे बैठे हैं वैसे बैठते हैं, इसको लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली पेशेंट को यहाँ पर पेन होगा। तो सही तरीका क्या है? ये सही तरीका है जिसके अंदर पेशेंट ने पूरा थाई रेस्ट किया है। थाई रेस्ट इज रियली गुड, सीधा बैठे हैं और सपोर्ट लिया है बैक का, तो इसके अंदर पूरे बोन्स में आएगा और दोनों बोन से, दोनों लेग से फुट के ऊपर इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर पीछे होके बैठना हो तो कैसे बैठेंगे? इसी पोस्चर के अंदर थोड़ा पीछे हो जाएंगे, बट मेंटेन रखेंगे कि अपनी 1, 2 एंड 3 तीनों पॉइंट पे कॉन्टेक्ट, हिप की साइड से, मिड बैक की साइड से, अपर बैक की साइड से। इसी तरीके से ही सही तरीका है बैठने का। अच्छा, अगर हम किसी स्टूल पे बैठे हैं या फिर लेट्स से बेड पे बैठे हैं, तख्त पे बैठे हैं, तो क्या सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है जिसके अंदर थोड़ा आगे झुक के बैठे हैं? नहीं, क्योंकि ये सीधा वेट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर स्पाइन के और एक्सिस बाहर जा रही है, इट इज नॉट फॉलिंग ऑन द हिप बोन। तो अल्टीमेटली पेशेंट को ये बैक में पेन हो जाएगा। और ये भी बहुत गलत तरीका है, क्योंकि अगेन ये हिप बोन से ट्रांसफर ना होके ये आगे यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को यहाँ पर पेन करेगा बैक में। तो क्या सही तरीका है? ये सही तरीका है जिसके अंदर छाती सामने हो, जेंटली नॉर्मली बैठी है और जो वेट पूरा बॉडी का आराम से हिप बोन पे ट्रांसफर होके फीमर बोन पे, लेग बोन्स पे ट्रांसफर हो रहा है। एंड पेशेंट शुड हैव गुड थाई रेस्ट। यहाँ पे कम है लेकिन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एक और चीज देखनी है, हिप और नी के अंदर या तो एक ही लेवल पे हो या हिप थोड़ी सी ऊपर हो, या तो हिप और नी एक ही लेवल पे हो या थोड़ी सी ऊपर हो, ठीक है। जैसे हिप और नी एक ही
लेवल पे थोड़ी सी ऊपर हो। अगर ये सोचिए कि जैसे आप सोफा पे बैठते हैं, जब आप सोफा पे बैठते हैं तो क्या होता है, नी ऊपर होती है, हिप्स नीचे होते हैं, और इसके अंदर भी अगेन स्पाइन का कर्वेचर टेढ़ा हो जाता है और पूरा जो वजन है वो लोअर बैक पे आता है और पेशेंट को इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। अभी हमें समझना है नेक के पोस्चर को कैसे ठीक करना है। नेक के पोस्चर को हम समझ सकते हैं ईयर से। ईयर का लाइन अगर शोल्डर पे पड़ रहा है तो दैट इज गुड थिंग। अगर आप धीरे धीरे चिन को आगे लेके जाने लगे तो क्या होगा, ये जो ईयर की लाइन है वो शोल्डर के बाहर फोल्ड करेगी, शोल्डर के बाहर फोल्ड करेगी, लाइक दिस, शोल्डर के बाहर फोल्ड करेगी, और धीरे धीरे ये जो नेक के मसल्स हैं वो वीक होंगी, फटीग होगी और वो पेन स्टार्ट कर देगी। अब ये समझते हैं जैसे काउच पे जैसे बैठते हैं, क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वेट ट्रांसफर प्रॉपर्ली नहीं होता है, ये यहाँ पर होता है और यहाँ से इसको बैक पेन स्टार्ट होगा। बेड पे बैठ के या लेट के काम करना सबसे वर्स्ट कंडीशन है। इसके अंदर से गंदा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका पूरा लेग का वेट भी यहीं आ रहा है और बैक का पेन भी यहीं आ रहा है, वेट यहीं पे आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो वेट है, अनड्यू प्रेशर है, और जो स्पाइन के कर्वेचर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो अल्टीमेटली ये बैक पेन करेगा, बहुत जबरदस्त बैक पेन करेगा। इसके अंदर लंबे समय तक पेशेंट, अगर कोई भी इंसान आगे झुक के काम करता है तो अगेन ये पीठ में या नेक में, गर्दन में दर्द करेगा। सही तरीका क्या है, हिप और नी आइदर शुड बी एट द सेम लेवल, या सेम लेवल पे हो या फिर हिप थोड़ी सी ऊपर हो। पेशेंट, इंसान सीधा बैठे और आई लेवल पे स्क्रीन हो, आई लेवल पे स्क्रीन हो, ठीक है, नीचे ना हो, ऊपर ना हो, और ये जो नेक की, ईयर की जो लाइन है वो शोल्डर पे फोल्ड करे। दिस इज द राइट वे। इसी चीज को हमें समझना है और डेली एक्टिविटीज में एर्गोनॉमिक्स का ध्यान देना है। चलो, अगर हमने इन सब चीज का ध्यान रखा फिर भी इस गादी फट गई, फिर क्या इलाज है? पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। फर्स्ट इज फिजियोथेरेपी या माइल्ड मसाज, सेकंड इज इंजेक्शंस, थर्ड इज मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, राइट, एंड लास्ट इज द सर्जरी। दीज ऑल आर द ऑप्शंस। ये मेरे केसेस हैं, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये पेशेंट को थोड़ा सा माइल्ड डिस्क हर्निएशन था, तो हमने पहले मेडिसिन दिया, पेशेंट इतना अच्छा नहीं हुआ, अप्रिशिएट नहीं किया, तो हमने इसको स्पाइन में इंजेक्शन लगाया और इसके बाद पेशेंट एकदम अच्छा हो गया, वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, जैसे पेन कभी था ही ना हो। अगर उससे आराम नहीं होता है तो हमें स्पाइन का सर्जरी करना पड़ता है। अभी जो पुराने दिन थे वो चले गए हैं, अभी ये मॉडर्न एरा है, इसके अंदर टेक्निक और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। पहले के टाइम पे क्या करते थे, लंबे चीरे वाली बैक स्पाइन सर्जरी, लंबे चीरे वाली स्पाइन सर्जरी, जिसके अंदर दोनों बाजू की मसल्स कट कर देते थे। कट करने से वो कभी भी वो ठीक से काम नहीं करेंगे, नेवर एवर। जो चीज एक बार कट हो गई वो कभी ठीक से काम नहीं करेगी, क्योंकि वो हीलिंग होगी फाइब्रोसिस से, उसमें उतना जान नहीं होता, उसको आप ताकत नहीं दे सकते, ठीक है। तभी ये चीज साइंस ने समझी, धीरे धीरे आविष्कार हुआ एंडोस्कोप। जिस तरह पेट की लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, दूरबीन से सर्जरी होती है, उसी तरीके से स्पाइन में भी दूरबीन की सर्जरी होती है। तो इसके अंदर दो टेक्निक बहुत कॉमन है, वन इज TSLD जो पीछे से, या फिर ट्रांसफेरनल सर्जरी, इसके अंदर इस तरह की दूरबीन होती है और उससे पूरी सर्जरी की जाती है। हाँ, सो ये एक हमारे पेशेंट हम आपको दिखाते हैं, इसको पूरा स्पाइन के अंदर अलग अलग तरीके से ब्लॉक थे, ठीक है। सर्जरी के बाद ये ब्लॉक खुल गए, देख पा रहे हैं आप, ये देखो, ये पूरा ब्लॉक, ये नस का रास्ता पूरा ब्लॉक था, यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पे ऑपरेशन के बाद, ये ऑपरेशन के बाद ये रास्ता खुल गया, सेम यहाँ पे भी रास्ता ब्लॉक था, यहाँ पे भी रास्ता ये खुल गया। हाँ, अभी हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। पेशेंट क्या बोलते हैं, क्या आवाज आती है आपको? सदरमा क्या सुन पाते हैं आप? नहीं सर, इसका आवाज नहीं आ रही है सर, अपना ऑडियो वीडियो की आ रही है। ओके, तो ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, चलो कोई नहीं। सो वैसे बताता हूँ, जिसका मैंने स्कैन दिखा, ये सेम पेशेंट जो मेरे पास यहाँ क्लिनिक पे आए सर्जरी के बाद, मैं उनसे वैसे पूछता हूँ कि आप कैसे थे, तो ये बताती हैं कि सर्जरी से पहले
चलने को नहीं होता था, कमर में बहुत दर्द था, पूरे दोनों पैर के अंदर झुंझुनी बनी हुई थी जबरदस्त तरीके से। कहते हैं 5 साल से परेशान थी, अब तो इतना तकलीफ हो गया था कि थोड़ा चलने को भी डर लगता था कि कहीं गिर ना जाऊं, क्योंकि पैरों में झंझनाहट हो जाती थी। तो इसके कारण से, सर्जरी के डर के कारण से वो कहीं नहीं गए। सो बट आखिरकार हिम्मत दिखाई, क्योंकि चलना ही बहुत मुश्किल हो गया। हम इनसे पूछे कि अभी आपको कैसा है, तो अम्मा बोलती है कि जो पहले झंझनाहट थी, टिंगलिंग, नमनेस थी, वो सब खत्म हो गया। शी इज वेरी हैप्पी। कमर में दर्द जैसे कोई ही ना, और कितना टाका आया, सिर्फ 1 टाका, और 10वें दिन निकलने के बाद एब्सोल्युटली ओके। ये जो पेशेंट है, ये 10वें दिन की वीडियो है। हमने इसको अगले दिन ही छुट्टी कर दिया था। तो हमने पूछा अभी आप क्या बोलेंगे, क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के रिगार्डिंग, तो बोलते हैं कि हम बोलेंगे कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। सो क्यों नहीं बढ़ना है, क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि ये समझिए कितना कट आता है, सिर्फ इतना, कितना, सिर्फ इतना, 1 सेंटीमीटर से भी कम, 1 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है। अगर मसल्स डैमेज ही नहीं होंगे तो फायदा क्या होगा कि ऑपरेशन का दर्द ही नहीं होगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि मसल का ब्लड का लॉस ही नहीं होगा। अगर ब्लड लॉस नहीं होगा तो कमजोरी नहीं होगी, पेशेंट बहुत खुश रहेगा, ऑपरेशन का दर्द है नहीं, और जो पहले प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम है नहीं अभी। तो धीरे धीरे पेशेंट इंप्रूवमेंट दिखाएगा और वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इसका दूसरा फायदा क्या है, जब हम एंडोस्कोप को, जिससे से हमें दूरबीन को जब अंदर डालते हैं तो सब कुछ चीज मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ा दिखता है हमें। जब बड़ा दिखता है, अच्छा दिखता है, तो हम वाइटल स्ट्रक्चर्स को बचा पाते हैं, ज्यादा सेफ हो जाती है सर्जरी, और पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद करती है। तो ये एक एग्जांपल है हमारी सर्जरी का, जिसके अंदर इतनी बड़ी गादी फट गई थी, नस को दबा दिया था, इसको रिपेयर किया, और 1 साल के बाद देखो एकदम ब्यूटीफुल कर्व बन गया, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है कि इसके अंदर कोई भी डिस्क का लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे भी गादी है, यहाँ पे भी गादी, यहाँ पे भी गादी है, तो पेशेंट की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कम हुई, पेशेंट एकदम अच्छा। और किस तरह से दिखती है सर्जरी के दौरान हमें नसें, इस तरीके से। और ये हम क्यों देख पाते हैं, हाई मैग्निफिकेशन कैमरा से। और कितना कट है, 8 मिलीमीटर, जस्ट 8 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी कम, और सारी नर्व्स हम प्रॉपर्ली देख पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, डिकम्प्रेस हो गया है और पेशेंट को फायदा होगा। ये सब बेनिफिट है, एडवांटेज है, एंड यही एक मैजिक है टेक्नोलॉजी एडवांस होने का, टेक्निक बढ़िया हो जाने का। सो एक पेशेंट का हमने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी किया है, ये सर्जरी कर रहा हूँ मैं इसका, ये बता रहे हैं अपने बारे में कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेटा हुआ हूँ, सर कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, इज टेलिंग ऑल दिस थिंग। क्यों? क्योंकि कोई एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, जनरल एनेस्थीसिया का, भूल की दवा, मुंह में ट्यूब, कुछ नहीं। पेशेंट मुझसे बात कर रहा है, हमने थोड़ा मेडिसिन दिया, तो बात करते करते हम ऑपरेशन कर रहे हैं। दिस वे वी आर डूइंग सर्जरी, सो मच कंफर्टेबल एंड दी मैजिक। सो इन द लास्ट पेशेंट का हमने देखा कि नर्व रूट एकदम फ्री है, अच्छे से प्रॉपर्ली हम देख पाए, ऊपर देख पाए, नीचे देख पाए, अच्छे से क्लियर हो गया। और लास्ट में सर्जरी में कट कितना आया, वो थोड़ा सा 8 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी कम, और पेशेंट को पूरा एनेस्थीसिया देना भी नहीं पड़ा, है ना। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि हम दूरबीन डाल के बड़ा करके देख सकते हैं, टारगेट को देख सकते हैं, दूरबीन डाल के हम चारों तरफ देख सकते हैं, दूरबीन से हम अननेसेसरली बोन कटिंग को बचा सकते हैं, दूरबीन से ऑपरेशन के बाद मरीज को ज्यादा दर्द होगा ही नहीं, क्योंकि कट ही नहीं दिया, हमने मसल्स को खत्म ही नहीं किया। फायदा क्या है, जो हमें टारगेट को काम करना था, टारगेट पे गए, काम किया, बाहर आ गए। तो इससे जो कोलेटरल डैमेज है मसल्स का, वो नहीं हुआ। तो मसल का डैमेज नहीं होगा तो धीरे धीरे उसके अंदर जो मोशन सेगमेंट है, मोशन सेगमेंट वो प्रिजर्व रहेगा, पेशेंट झुक सकता है, पीछे कर सकता है, एकदम कंफर्ट नहीं। बड़ी सर्जरी का स्कार ऐसा हो, इसका एक मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मंथ्स के बाद मरीज बता भी नहीं पाते कहाँ से ऑपरेशन किया था, क्योंकि वो निशान ही नहीं ढूंढ पाते, कहाँ से मालूम पड़ेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा फायदा, जब खून का लॉस नहीं हुआ, ब्लड लॉस नहीं हुआ, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इवनिंग में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। दिस इज द मैजिक। सो लेट्स समराइज टुडेज वेबिनार, ठीक है। सो
आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द पोस्चर करेक्शन. हमें समझना है पोस्चर क्या सही है. ये पोस्चर आप सब डायग्राम्स देखो, समझो इसको. पोस्चर करेक्शन, आपको जब खड़े होना है तो छाती सामने रखनी है, ठीक है. तो हाथ नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को बराबर रखेंगे ताकि जो वेट है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होकर लेग्स के थ्रू नीचे जाए. अब नॉर्मल पोस्चर में खड़े नहीं होना है. और जो गर्दन को थोड़ा सा पीछे की साइड रखेंगे ताकि उसकी जो ईयर वाली लाइन है वो शोल्डर पे गिरे, बाहर ना गिरे. चलते समय भी इसी तरीके से ध्यान रखना कि आगे झुक के ना चले, सीधा चले, पैरों से काम करें, पैरों से चले, ठीक है. इससे फायदे क्या होगा कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लेग्स पे प्रॉपर्ली होगा, ठीक है. अगर आपको बैठना है तो आप प्रॉपर चेयर पे बैठे, ऐसा नहीं कि आप बेड पे बैठे हैं या फिर सोफा पे बैठे हैं, वो बहुत गलत चीज है, ठीक है. आपको लंबे समय तक किसी कंप्यूटर पे काम करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी काम करना है, तो आप प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठे और एक प्रॉपर पोस्चर का ध्यान रखिए. क्या होता है प्रॉपर पोस्चर? छाती सामने, दोनों हाथ साइड के अंदर, रिलैक्स पोस्चर में, और जो चिन है आपके पीछे, और इस तरीके से अगर आप सामने रह के अपना आई लेवल पे अपना काम करेंगे, आईज को ऊपर नीचे से काम करेंगे, तो पोस्चर का अच्छा रहेगा और दर्द नहीं होगा. किस तरह से कोई भी सामान जमीन से उठाएं, जैसे कि बाल्टी, जैसे कोई पतीला या फिर कुछ और सामान, ध्यान रखना है अपने घुटनों को मोड़ो, ये घुटनों को मोड़ो, नीचे बैठो, दोनों हाथ से सामान उठाओ और अपनी कमर को सीधा रखो और फिर सामान लेके खड़े हो. ये सही पोस्चर है. अगर स्पाइन को मोड़ा तो अल्टीमेटली वो दर्द करेगी, पेन करेगी, हो सकता है कोई गादी फट भी जाए. क्यों? क्योंकि आपका पोस्चर बहुत गलत है, ठीक है. इसी तरीके से हमें इन सब स्पाइन पोस्चर्स का हमें ध्यान रखना है और ठीक रहना है. लास्ट, ये व्हाइल ड्राइविंग आल्सो यू कैन पुट वन पिलो बिहाइंड ताकि आपका पोस्चर करेक्ट रहे. तो पूरा थाई रेस्ट यूज करो, पूरा थाई रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. प्रॉपर्ली बैठिए, सीधा बैठिए, ज्यादा पीछे नहीं जाइए लाइक दिस, ठीक है. तभी इस पोस्चर का ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे हो पाएंगे, ठीक है. सो मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ इसे पोस्ट उठाने का. ऐसा नहीं कि सीधा झुके बिना घुटना मोड़े तो क्या होगा, सारा का सारा वजन आपकी स्पाइन के ऊपर आएगा, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है. सही तरीके से बैठना है, सही तरीका बैठने का बहुत ज्यादा जरूरी है, सब समझें. सही तरीके से खड़े होंगे, जिस तरह से ये आगे झुक के खड़े हुए हैं या फिर नेक के सामने, नेक आगे झुका के खड़े हैं, तो गलत है. ये पोस्चर पूरा खराब कर देता है. यहाँ से एक बार स्पाइन का कर्वेचर खराब हुआ तो पीठ में दर्द स्टार्ट होता है. तो इसलिए अपना स्पाइन कर्वेचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. साथ में ध्यान रखिए रोजाना व्यायाम, 20 मिनट रोजाना चलना है. एक्सरसाइज जरूरी है. एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे, रनिंग करें, चाहे ब्रिस्क वॉकिंग करें, लेकिन 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग या फिर रनिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ में पौष्टिक आहार में क्या आता है? पौष्टिक आहार में आता है आपका एक फल और एक सब्जी कच्ची रोजाना खाए. फल कौन सा? जो भी सीजनल हो, लाइक ऑरेंजेस आज के टाइम पे, या लाइक वेजिटेबल्स के अंदर टमाटर खा सकते हैं, टोमेटो, कुकुम्बर, हाँ ये सब. तो एक रोजाना अपना खाइए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रियली वेरी इंपॉर्टेंट. साथ में जरूरी है वाटर कंटेंट. वाटर बहुत अच्छे से पीना है. अगर आप पूरे दिन एसी में रहते हैं तो 3 लीटर तक, अगर एसी में नहीं रहते तो 4 लीटर तक पानी पीना है. 4.5 लीटर भी हो सकता है. मेक श्योर कीजिए जब आपका पेशाब आए तो देखिए कि उसका रंग ज्यादा पीला तो नहीं है. अगर ज्यादा पीला है तो इसका मतलब आप में पानी की कमी है. दूसरा, हर 2.5 से 3 घंटे में आपको पेशाब आना चाहिए, मतलब कि आपकी पानी की कमी पूरी, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी पूरा रहना चाहिए. अगर पानी पूरा पीते हैं, डेली बाहर कसरत जाते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, तो आप स्पाइन से नहीं बाकी समस्याओं से बच जाएंगे. लास्ट, सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल लेना, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है. धीरे धीरे स्पाइन को डीजेनरेट फास्ट कर देता है और ये सब प्रॉब्लम करेगा. हाँ, सो that's all for today, and many thank you from my side. The forum is open to ask any question.
Yes, yes, sir. Sir, we have a lot of hands raised, sir. Hope you enjoyed it. Hope you enjoyed Thank you, it. sir. सर वेरी गुड इंसाइटफुल वेबिनार सर. सर अपने पास काफी सारे लोगों के हैंड्स अभी खड़े हुए हैं, तो हमने उनको बोला था कि आप Yes, एक एक please. करके Yes, आपके हाथ उठाइए टू yes. आस्क द क्वेश्चंस. तो सबसे पहले है मिस्टर शरद सिंह. तो शरद सिंह जी, आप आपका माइक अनम्यूट करके सर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हेलो सर. Yes, yes, Sharad. Please बोलिए. I can't hear you. शरद जी, देखो, आपका आवाज माइक नहीं अभी आती भी यहाँ ऑफ पे. है. हाँ, आपका माइक अभी भी ऑफ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं. ओके. हेलो सर. Yes, please बोलिए. सर मेरा नाम हिमांशु. माय नेम इज हिमांशु. आई एम फ्रॉम लखनऊ सर. Yes, Himanshu. Yes, सर Himanshu मेरा जी, please बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था सर. सर मैं ज्यादातर कंप्यूटर वर्क पे रहता हूँ 9 to 10 आवर्स Okay. चेयर पे. तो सर मेरा कंप्यूटर वर्क रहता है चेयर पे. तो कभी कभी मेरे बैक में पेन में रहता है सर, बैक में पेन सर. तो हम 9 to 10 आवर्स में सर ऐसा क्या कर सकते हैं कि थोड़ा हमें उससे रिलीफ रहे सर? Yes. Wonderful question, Himanshu. I tell you few extension exercises also. See, Yeah. पहले आपको समझना है कि आपको postures ठीक रखने हैं. आप अपनी जो चेयर Yes, है, sir, जो yes. अपनी Yes. डेस्क है, जो Yes, चेयर sir. है और डेस्क है, उसको प्रॉपर्ली उसका चुनाव कीजिए कि आपकी चेयर Yes. और डेस्क का हाइट प्रॉपर है. सेकंड Yes, थिंग, sir, yes. आपको जो कंप्यूटर पे जो आप काम करते हैं, आपको ऐसे झुक के काम ना करना पड़े. वो Yes, आपकी sir. चेस्ट सामने होनी चाहिए, जो चिन है नीचे, और प्रॉपर्ली आराम से रिलैक्स पोस्चर में आप काम कीजिए. ठीक है सर और हर आपने 20 अभी से ये सब 30 बताया. हर सर ये 20 सब से अभी आपने 25 बताया. Yes, यस सर, Himanshu, यस. please. कंटिन्यू सर. यस सर, ये सब आपने हर बताया 20 तो से सिर्फ 25 काफी है मिनट में थोड़ी. यस. हर यस 20 सर. से 25 मिनट में कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइज कीजिए. मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सर साथ कभी में 2 कभी. एक्सरसाइज जो आप बैठे बैठे आप Yes. काम कर सकते हैं. सो Yes, sir. पहली एक्सरसाइज ये है, हाथ को पीछे लेके जाइए और अपनी जो Yes, एल्बोज yes, है sir. उसको स्ट्रेच कीजिए Yes. like this. Count 10 and relax. Again, Yes, sir. do it like this and then relax. Yes. First exercise. Second exercise, Yes. कोहनी को पीछे लेके जाइए और do like this. Count 10 and then relax. Count 10 and then relax. So, see, these are the stretching exercise. Stretching exercise बहुत Yes, ज्यादा sir. रिक्वायरमेंट है और ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो आप बैठे बैठे अपने काम पे भी कर सको. सो ये 2 एक्सरसाइज है जो डेफिनेटली हिमांशु विल हेल्प यू आउट. अगर आप रोजाना इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत फायदा होगा. हिमांशु, होप यू आर सर सेटिस्फाइड. मेरी नेक में भी पेन. यस सर, गुड गुड सर. सर थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. सर गिनती करना है सर. Hope you do well and yes, Himanshu, if you want to meet me, definitely you can see me at my clinic. क्लिनिक का कॉन्टैक्ट है 70 80 10 65 35. मेरा क्लिनिक विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में है. सो whenever if you have any problem, definitely you can see me. सर प्लीज वन टाइम रिपीट सर. नेक्स्ट है 708065 ये मेरे असिस्टेंट का Okay, कॉन्टैक्ट thank you. नंबर है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. सर नेक्स्ट प्रभा मैडम का है. उन्होंने एक क्वेश्चन की रिक्वेस्ट की है. जी मैडम. यस Hello. यस मैम. यस प्रभा मैम, प्लीज गो अहेड. सर मैं ये Yes, ma'am, पूछना please go चाहती हूँ, मुझे स्लिप डिस्क है L4 L5 और S1 में. तो लेफ्ट ma'am. साइड में जो शाटिका नर्व है वो दबी हुई है. Yes. 19 Yes. mm में MRI करवाई थी और राइट में भी Okay, थोड़ा सा दर्द रहता है. तो दोनों Okay, ma'am. लेग्स में दर्द रहता है बट लेफ्ट में बहुत ज्यादा है. कमर से पैर की तरफ जाता है और मुझे लेटने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. स्ट्रेट मैं लेट नहीं पाती, उल्टा ही लेटती हूँ और चलने से कंफर्टेबल हूँ. एक्सरसाइज भी करती हूँ और डेली वॉकिंग भी रहती है मेरी. 1 आवर की रहती है और एक्सरसाइज भी 1.5 आवर 2 टाइम्स रहती हैं. बट good, मैंने ma'am. फिजियोथेरेपी 1 साल से करवा ही रही हूँ
3-4 फिजियोथेरेपिस्ट चेंज भी किए हैं, स्पाइन सर्जन को भी दिखाया था, बट जी। मुझे कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा। तो Baba ma'am, I हाँ tell you जी, one thing. See, if you are having sciatica kind, means जो आपने symptoms बोले हैं वो sciatica में बहुत ज्यादा आपको क्या झुंझनी और भारीपन भी रहता है पैर में, कभी कभार यस, झुंझनी आती दोनों हो? बोथ लेग्स में रहता है, कुछ घुटनों में भी काफी ज्यादा पहले रहने लगा था, अब थोड़ा सा घुटने ठीक हो गए हैं, मसल्स वीक हो रहे थे लेग्स के, तो पीछे मैंने इंजेक्शन लगवाए, B12 के 5 इंजेक्शंस लगाए हैं, उसके बाद थोड़ा मुझे मतलब ठीक लग रहा है, लेग्स में थोड़ा Yes. भारीपन हल्का कम हुआ है, एक्सरसाइज करती हूँ तो बट मुझे पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा, मैं सीधा नहीं लेट पाती, लेटने के बाद उठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जब चलती फिरती हूँ तो थोड़ा ठीक लगता है, और बैठने में भी ज्यादा देर नहीं बैठ पाती, ज्यादा देर बैठने के बाद थोड़ा सा वो लगता है दर्द, तो ये मेरा प्रॉब्लम है। हाँ जी बाबा मैम, आपको ये डेफिनेटली sciatica और lumbar stenosis के फीचर्स हैं सिम्टम्स वाइज, ऐसा लगता है, हाँ बट जी, आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू पर्सनली। इफ यू हैव टाइम प्लीज कम टू मी सो दैट मैं आपको एग्जामिन कर सकूं। एग्जामिनेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर का, उसके अंदर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कई नर्व वीक तो नहीं हो रही, अगर वो नर्व वीक हो रही है और वो एमआरआई के साथ कोरिलेट कर रही है, तो यू मे यू नो गेट हेल्प विद स्पाइन डिकम्प्रेशन। और आपने ऐसे बताया आपने ऑलरेडी इंजेक्शन का यूज कर चुका है एंड स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, सो यू आर द कैंडिडेट कि जिसको मैं पर्सनली एग्जामिन करूं और उसके बाद मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली कि क्या वो एमआरआई के साथ कोरिलेट हो रहा है और विच क्या आपके लिए क्या बेस्ट मोडेलिटी रहेगा ट्रीटमेंट का। सो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट ही मैं अभी तो होम्योपैथी मेडिसिन भी ले रही हूँ, कुछ बीच में आयुर्वेदिक भी ली थी, बट एलोपैथी भी काफी दवाई खा ली, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ, ज्यादातर पेन किलर मसल रिलैक्सेंट ही होते हैं, गाबापिन थी तो वो मैं नहीं मुझे सूट करती, तो बंद कर दी थी मैंने ये सब मेडिसिन। तो दर्द तो मैं सहन करती हूँ, बट मुझे परमानेंट रिलीफ और ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। My dictum goes with my teacher, Dr. Amani, Professor Amani. What he says always, you should live happy and healthy. If you are not able to live happy and healthy, you should go with the doctor's advice, whatever they advise. You should not deceive yourself and just think about roam around here and there. See, this is the only allopathy is the only thing which has evidence. ठीक है, आपको एक प्रॉपर यू कैन मॉनिटर द डोज, यू कैन मॉनिटर द थिंग्स, एविडेंस के साथ आपको मालूम पड़ेगा कि आपको समझेगा कि किस तरह से आप जा रहे हैं। 85% केसेस में, स्पाइन के केसेस में ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन जिसमें रिक्वायरमेंट है उसमें करना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। सो आपको एक अपने डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। This is regarding the surgery that I don't know your case. I want to see you personally. I want to evaluate you. है ना? मैं चाहता हूँ कि मैं आपको देखूं कि नर्व्स में वीकनेस है या नहीं है, आपको जग्स कैसे हैं। Usually we examine sensory, motor and reflexes. We examine 3 things. कि नर्व में कोई वीकनेस है क्या, सेंसेशन कितनी आ रही है, जग्स कैसे हैं, उसके हिसाब से आपके एमआरआई को कोरिलेट करके देन वी यूज इट टेक द फॉर। अच्छा, आपका क्लिनिक कहाँ पर है? एनसीआर रीजन में कहीं है? कौन सी मैम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। Oh my goodness, ma'am, then you have to come to Lucknow, and once you come to Lucknow and you can go to Ayodhya also for Ram Janmabhoomi darshan. or as you should see lovely city of Lucknow, come to me, let me examine yourself and I will give you the right answer what I can do, help you out and give you the best possible medicine. हाँ, बट मैंने यहाँ पे स्पाइन सर्जन ने बोला था कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, उसके मुताबिक ही मैंने सारी फिजियोथेरेपी भी करवाई है, सब कुछ कर रही हूँ, बट देयर इज नो रिलीफ, सो आई वरीड। So let me see your MRI. Let me see your MRI. Okay, thank you. Okay, ma'am. Okay. Next, please. Thank you, ma'am. I request everyone to keep the questions short and swift. Yeah, Mr. Vinod Kumar, you can go.
Who is there, Saudharma? हेलो। मिस्टर विनोद कुमार। जी सर, हाँ जी, Yes, मैं Vinod ji, sir, please बोलिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी एज Yes, Vinod ji. 69 है। 2020 में L4 L5 का डीकम्प्रेशन के लिए सर्जरी हुआ था और Okay. उसी That was उसी जगह open surgery. Open surgery. है। नहीं ओपन Open नहीं, surgery और हाँ नहीं ओपन नहीं, ये कितना बड़ा चीरा आया है आपको? छोटा सा जो आप बता रहे हैं उतना ही आया है। Endoscopic surgery. Okay, please go ahead. अच्छा, वो उसी जगह पे L4 L5 पे वो दोबारा रिकरेंट हो गया है, तो ये Okay. दोबारा क्यों हो गया है? So दोबारा अगर होता है इस तरह से तो इसके मुख्य कारण सर दिनचर्या होती है। अगर आप जैसे मैंने इन सब फैक्टर्स का जो डिस्कस किया, अगर डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मसल्स वीक रहेंगी, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली जो चीज पहले हुई है वो वापस से हो सकती है। देखो हमारा आइडिया क्या होता है किसी भी सर्जरी के बाद, आइडिया ये होता है कि जो नर्व्स को उतना ही निकालें, उतना ही काटें जो नर्व्स को प्रेस कर रहा है या फिर कोई लूज फ्रैगमेंट है। आगे हम नहीं चाहते कि हम सारी गादी पूरी डिस्क निकाल दें। क्यों? अगर सारी निकाल देंगे तो अल्टीमेटली वो मेरा लिसन टू मी फर्स्ट, सब कुछ निकाल देंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो स्पेस खत्म हो जाएगा, फिर वो आइडिया एंडोस्कोपी का खत्म हो गया। सो आइडिया एंडोस्कोपी के या किसी भी सर्जरी से ये है कि नुकसान ना हो, सिर्फ बेनिफिट हो। अगर आपको ऑपरेशन के बाद एक बार बेनिफिट हो गया था तो द थिंग्स वर डन, बट उसके बाद आपको अपनी स्पाइन का, अपनी हेल्थ का खुद से ध्यान रखना है। नहीं, बेनिफिट तो उस टाइम पे हो गया था। अभी मैंने दोबारा दिखाया डॉक्टर साहब को, तो अभी दोबारा सर्जरी उन्होंने वो किया है, तो मैं तो पूरा अपना डाइट वॉक ये सब ठीक रखता हूँ। वेरी गुड। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये दोबारा क्यों हो गया है। So let me see your MRI, then I can answer a little bit more. अच्छा, चलो। Very difficult ना? क्या होता है कि when आप आपस में बात करते तो चल जाता है, जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर को एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में बोलना होता है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आपका वेबिनार देख के। इट वाज वेरी नाइस। तो मेरी सर्जरी प्लान है, मैं दोबारा सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। Thank you. Oh my goodness. Hope all the best wishes. If you require any help, my team is there to help you out. Don't worry, sir. Thank you. Sure. मिस्टर प्रतीक जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं जब गाड़ी लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो मुझे बैक पेन में कोई, लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शोल्डर्स के नीचे अपर बैक में मुझे पेन हो जाता है। Yes, Pratik, exactly. Pratik, it is because of the wrong posture while you are sitting in the car. That is number one. Number two is weak muscles of the upper back. तो जो मांसपेशी जो अपर बैक की कमजोर हो गई है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सी अल्टीमेटली क्या होता है, हम मसल से उतना ही काम ले सकते हैं जितना उसमें जान है। जब उसमें जान नहीं रहेंगी तो धीरे धीरे वो फटीग होगी और वो आपको पेन करेंगी। ठीक है, तो यूजुअली जो आपने इंटरस्कैपुलर पेन बोला है, मींस ऊपर वाली साइड जो पेन बोला है, वो यूजुअली इसलिए होता है कि मसल कमजोर होने के कारण, क्योंकि ऊपर हमारे रिब्स का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है और कुछ कारण यूजुअली होता नहीं है। ठीक है, सो आपको सबसे पहले डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली। ठीक है, 1 नंबर 2 आपको अपर बैक पे भी काम करना चाहिए सो दैट उसमें जान आए और उतना ही काम ले। आप कितना आवर्स ड्राइविंग करने के बाद ऐसा पेन होता है आपको? सर 3 से 4 घंटे। एग्जैक्टली, सो दिस इज माय पॉइंट। सी, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंसेस अगर आप ट्रैवल करेंगे तो पेन नहीं होगा, बट लंबा समय करेंगे तो पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है पेन? क्योंकि आप मसल को ज्यादा यूज कर रहे हैं और वो उतनी पावरफुल नहीं है। तो क्या करना होगा, मसल को पावरफुल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? एक्सरसाइज करके। 1 नंबर 2 इज हेल्दी डाइट। B12 विटामिन D3 ये दोनों कम नहीं होना चाहिए। B12 विटामिन D3 अगर कम होगा तो अगेन मसल सोरनेस होगा, मसल में पेन होगा। सो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपको मसल एक्सरसाइजेस, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस लगातार प्रॉपर्ली करनी है। होपफुली यू शुड बी ओके। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है मेरा रिलेटेड टू दिस। जब हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो जैसे आपने बताया कि लोअर बैक को एकदम चेयर के बैक के साथ लगा के काम करते हैं,
लेकिन ना अगर कभी अपर बैक में पेन होने लगता है तो अगर हम आगे मतलब अपने जो हिप्स हैं उनको थोड़ा आगे करते हैं तो अपर बैक को सपोर्ट ज्यादा मिलता है। Yes, so this is really very wrong posture that you are doing. अगर आप इस तरह से लंबे समय तक करोगे तो धीरे धीरे लंबर स्पाइन के अंदर चेंजेस, डीजनरेशन के चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। You can have lumbar back pillow support, that is number 1. एक पिलो रख सकते हैं लोअर बैक पे, that is number 1. Number 2, which is really very important, आपकी अपर बैक मसल्स वीक हैं। अगेन आपकी एक सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आपको जब लॉन्ग सिटिंग आवर्स जब होगा तो आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। This is 1 exercise, this is 2 exercise, and if you can get up in between from the chair and just touch your स्पाइन को, अपर बैक को आपको सपोर्ट देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है क्योंकि वो मसल वीक है तो दे वांट सपोर्ट, हाँ, और उसके लिए आप आगे शिफ्ट कर देते हैं अपनी बटक्स को, तो गलत है। तो आपको एक लोअर बैक के लिए एक पिलो ले सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आपको रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सटेंशन। थैंक यू सर, हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस। ये हेमंत जी से एक क्वेश्चन है। हेमंत जी बताइए। गुड इवनिंग, मैं ना गुड़गांव से बोल रहा हूँ, मेरी एज 40 इयर्स है और मुझे ना 8 साल से बैक पेन है। तो ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी ठीक हो जाता है, जैसे फिजियोथेरेपी करवाता हूँ तो ठीक हो जाता है, और कभी नहीं, मतलब कभी उससे भी ठीक नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास ना टेस्टिकल में पेन जा रहा है, मेरे लेग में पूरा पेन जा रहा है और टेस्टिकल में पेन आता है, ग्रोइंग एरिया में पेन आता है। और मुझे पास्ट डिफेक्ट बताया गया है, PARS पास्ट डिफेक्ट बताया गया है, और मैं स्पाइनल इंजरी में दिखा रहा हूँ दिल्ली। तो कुछ डॉक्टर उसमें मुझे बोल रहे हैं फ्यूजन होगा, कुछ बोल रहे हैं इंडोस्कोपी होगा, कुछ कह रहे हैं कि अभी कुछ मत करो, आप इंजेक्शन पे जाइए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अब एक्यूपंक्चर भी करवा लिया और फिजियोथेरेपी भी करवा ली, कैरोप्रैक्टर के पास भी जा रहा हूँ, मुझे इस टाइम पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा। Oh my goodness, Heman ji, you have gone through lot of pain and let me sort out your question. So you told me, डॉक्टर ने बताया कि आपको पार्स फ्रैक्चर है। पार्स फ्रैक्चर का मतलब स्पाइन फ्रैक्चर है। जो स्पाइन फ्रैक्चर वाला होगा उसमें स्पाइन अनस्टेबल होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर स्पाइन अनस्टेबल होती तो 35% जब तक स्पाइन आगे की तरफ नहीं आती तब हम उस केस में फ्यूजन नहीं करते। मेरा एक्सरे में, सॉरी सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, मेरे एक्सरे में डायनेमिक इंस्टेबिलिटी, वी हैव टू लुक फॉर डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। सो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें क्या करते हैं, वेट बियरिंग एक्सरे, खड़े होके एक आगे झुक के एक्सरे करेंगे। मैं वही बोल रहा था, एक्सटेंशन और फ्लेक्सेशन दोनों एक्सरे करवा रखा है, ठीक है। और उसमें उन्होंने एक्सरे चेक किया तो एक्सरे में एक डॉक्टर ने बोला, मतलब 2-3 ओपिनियन लेनी पड़ती है ना, तो एक डॉक्टर ने बोला कि आगे मतलब जो डिस्क है आगे की तरफ नहीं आ रही तो आपको फ्यूजन नहीं करवाना चाहिए, इस केस में आपको इंडोस्कोपी में जाना चाहिए। एक बोलता है कि नहीं फ्यूजन होना चाहिए, और एक बोलता है डॉक्टर कि नहीं आप इस पे कुछ मत करो, आप इंजेक्शन थेरेपी में जाओ। So let me see your scan. Let me see your scan and I will give you the final opinion, and that will be the master opinion. ओके। और मैंने ना ऐसा ही मेरा ओपिनियन मींस यू डू, मैंने MRI भी करवाया है, पॉलिटिकल ओपिनियंस, आई विल गिव यू द फाइनल ओपिनियन। ओके सर, ओके। मैंने ना MRI भी करवाया है कल, हिप जॉइंट्स का, SI जॉइंट्स का। तो SI जॉइंट्स में थोड़ी स्वेलिंग आई है, ठीक है। तो वही बात है, समझ नहीं आ रहा कि किस चीज में जाऊं, क्या करूं। मुझे ओपिनियन जो आपने बोला है वो, जैसे हमने आपको दिखाया था, एक पर्स वाला दिखाया था, वैलेट वाला, उसके अंदर बहुत कॉमन होता है सैक्रोइलाइटिस हो जाना। दैट इज वन जो आप बता रहे हो ना, सारे उसमें स्वेलिंग बताई, दैट इज नंबर 1। सेकंड रीजन ही HLA-B27 लेवल को आते हैं, उसमें कॉमन होता है। थर्ड रीजन होता है कोई यूरिन इन्फेक्शन होता है, उसमें कॉमन होता है। दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन रीजंस। वो अपने को एक बार रूल आउट करने होता है और अकॉर्डिंगली मेडिसिन देनी होती है। यूजुअली 80% ऑफ द केसेस जस्ट मेडिसिन से सैक्रोइलाइटिस के एब्सोल्युटली ठीक हो जाते हैं। 20% पेशेंट्स के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ नर्व रूट ब्लॉक या पेन ब्लॉक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, इसके अलावा उसके लिए कोई सर्जरी नहीं होती, ठीक है। अगर सो लेट यू कंसल्ट विद मी एंड आई विल गिव यू द फाइनल ओपिनियन।
मास्टर ओपिनियन। ओके हेमंत जी। ओके, तो देन मेरे को ओपिनियन के लिए कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा थोड़ा बता सकते हैं? Yes. So you can note down the contact number of my assistant. ओके, 7080. जस्ट अ मिनट सर। Yeah. सर बताइए। सर हमको 708 आपकी कांटेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी शेयर की हुई है सर ग्रुप में, तो वहां से ओके, भी ओके। हाँ, ओके ले सर, सकते मैं हैं। इन्फॉर्मेशन ले लूँ, कोई बात नहीं सर, मैं ले Yes, लूँगा हेमंत वहाँ जी। से। Sure, sure. Okay. ओके, ठीक है सर, फिर मुझे फाइनल ओपिनियन बता देना, मैं आपको डिस्कस करके आप 100% मुझे best फाइनल wishes, हेमंत जी। No problem. थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू। अभी एक हम लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, सिंस हम लोग ऑलरेडी हम ओवर टाइम चल रहे हैं थोड़े। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। ये अनीशा गुप्ता, Who is the lucky अनीशा man? गुप्ता जी से, या नहीं, अनीशा जी से लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है Anisha ji. Yes. हेलो Yes, ma'am. सर, Please गुड go ahead. इवनिंग सर। सर, माय नेम इज Yes, आरती, ये मेरी बेटी का नाम है, उसने अपने नाम से आईडी बना रखी है। मेरा नाम आरती है सर, मैं Okay. 44 इयर्स की हूँ और मैं Okay. दिल्ली से हूँ सर। सर, अभी मेरा लास्ट ये 3 अप्रैल को अचानक ही मेरी बैक में बहुत तेज दर्द हुआ, जिसकी वजह से Okay. मेरे को मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी, बहुत ही ज्यादा Okay. सिवियर पेन था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये सडन पेन आया था, तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ रेस्ट का है मेन, कि आप फिजियोथेरेपी Okay. कराओ और रेस्ट प्रॉपर करो। और कुछ उन्होंने मेडिसिन दे दी थी और उन्होंने कहा कि एमआरआई नहीं कराओ, क्योंकि एमआरआई में जो भी आएगा उसके बाद भी ट्रीटमेंट यही है कि उसमें आपको रेस्ट ही करना है। तो फिर मैं थोड़ा सा Okay. सेटिस्फाइड नहीं थी उन डॉक्टर से, तो फिर मैंने Okay. एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा Okay. कि आप एमआरआई कराइए, फिजियोथेरेपी की अभी नीड नहीं है, लेकिन आप एमआरआई कराइए, फिर हम उसमें से देख के आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए सर। और मतलब अभी Okay. मुझे जो मेरे को सिवियर पेन था, मेडिसिन के बाद थोड़ा सा आराम तो हो गया, लेकिन मेरे जो बॉडी में Okay. एनर्जी थी 3 अप्रैल से पहले, वो एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया सर मेरा। मतलब मैं काम करने में मेरा मतलब मुझे एनर्जी मेरी बहुत खत्म हो गई सर। मैं मतलब मेरे को ये हो गया कि मेरे शरीर को क्या हो गया, मैं इतने अच्छे से काम करती थी सब चीजें, Okay. और आरती मैं जी, नहीं कर पा रही हूँ। आदि जी प्लीज कीप इट कंसाइज। मुझे एक बार ये बताइए कि जो आपको बैक पेन है या फिर जो दर्द है वो एग्जैक्टली है कैसे और कहाँ पर है? जस्ट कीप इट शॉर्ट। सर, लोअर बैक में है सर, लोअर बैक में हुआ था। Okay. जो हुआ था सिर्फ कमर में दर्द है, बैक में दर्द है, लेग्स में कोई दर्द नहीं है? सर, कमर दर्द से पहले मेरे को शिकायत रहती थी घुटनों की, कि मेरे घुटनों में यार दर्द रहता है, मैं अपने हस्बैंड से कहती थी। नहीं, अभी लेकिन कौन सा जब वो दर्द है? कमर वी आर दर्द टॉकिंग हुआ तो अबाउट मेरे 3 अप्रैल। सर, जब मेरे कमर में दर्द 3 हुआ तो मेरे अप्रैल के सारे बाद दर्द। में आपको हुआ सिर्फ बैक पेन हुआ है? हाँ जी सर, और वो दर्द इतना Okay, सिवियर no था कि leg मेरे pain. शरीर के बाकी दर्द सब खत्म हो गए थे सर। ओके। सो नो लेग पेन, नो sciatica, पैरों में झुंझुनी भारीपन वो भी कुछ नहीं नहीं है, सर, राइट? पैरों में मेरे को कभी कभी जैसे हिंदी में शायद बावटा कहते हैं, वो आता था कभी, राइट साइड के पैर में ज्यादातर वो आता था, नस खिंच जाती थी, तो उसको रब करके वो ठीक करते थे फिर हस्बैंड मेरे। ठीक आती थी, बाइटा आता था और वो रब करके हाँ जी, वेट हाँ देने जी। से ठीक रहता था, हाँ जी, राइट? हाँ जी। राइट। सो नाउ लिसन टू मी, सी जो आपको एक क्रैम्प्स जो आ रहे हैं उसके लिए यूजली vitamins और minerals की deficiency होती है, and if you get good combination of vitamins and minerals you should be okay in the cramps. That is number 1. Regarding your back pain, now just elaborate your back pain. आपको क्या करवट लेने पे चीज बढ़ती है, वो कहाँ आपको वो दर्द बढ़ता है, सिर्फ उतना बताएंगे? सर नहीं, करवट में मैं बहुत आराम से लेटी रहती हूँ, लेकिन जब सीधी लेटती हूँ तो मेरे को दर्द फील होता है। ओके। सिर्फ नीचे की साइड, लोअर बैक में? हाँ जी, लोअर बैक सर। So I think it is just inflammation, and आपको with medicines you should be okay. Don't take much rest. You can apply, some diclogel or I cannot at this juncture, no, I cannot tell some medicines and all that. But yes, I can tell you simple tricks कि आप थोड़ा टाइम लंबर ब्रेस यूज कर सकती हैं और कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले सकती हैं। सो विद दिस थिंग यू शुड फील बेटर, एंड फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं व्हेन वी कनेक्ट थोड़ा, क्योंकि ये काफी चीजें पर्सनलाइज हो आती है।
I miss for the Okay, things sir. I need to ask a little bit more. So, but yes, I don't think this is a major concern. ये एक moment के लिए है. It should be okay. ओके, थैंक यू सर। सारी रिपोर्ट सर सही है मेरी, विटामिन डी कम था और बाकी सारी रिपोर्ट्स मेरी ओके थी सर, टेस्टिंग्स में जो था। Let me evaluate, ma'am. Your cramps indicates that you are having mineral deficiency, and sadly, the mineral tests are really very, very costly. You have to spend lakhs of money, and no doctor will advise you any mineral test because medicines cost just $100. So Okay, sir. maybe 20 days of some good vitamin and mineral medicine will help you a lot in the cramps and the कमर दर्द के लिए, लो बैक के लिए होपफुली ये ज्यादा लंबे समय नहीं रहेगा. विद जस्ट मेडिसिन, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, सम लोअर बैक लंबर ब्रेस, यू शुड बी ओके. ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बेस्ट विशेस. बट यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्पाइन, दैट वी डिस्कस्ड. किस तरह से पोस्चर का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, और सब चीज का ध्यान रखना है. खासकर अभी तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना. ओके मैम, बेस्ट विशेस. Yes. Thank you so much, sir, for this webinar, sir. So I think we can conclude. We have shared the surgeon's contact details, their clinic address, everything. We have shared on the group, WhatsApp group, through which आपको ये link आई थी. So thank you so much, sir. Any concluding Thank you, remarks, sir? Sudharma, for the nice interaction and for the nice webinar that you and your team organized. I am truly grateful to all the people who attended, जिन्होंने अटेंड किया और ये जरूरी चीजें समझी. अब बात ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है इसको और चीजों को ध्यान रखना है ताकि हम इस चीज से, बीमारी से बच सकें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट. ओके, ऑल द बेस्ट विशेस एवरीवन. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir.